So in the last class, what we have learned in paper CC 13, we have learned about basics of animal behavior, ethology, definition, branches and significance, approaches and methods also. Now in this class, we will discuss about the pattern of behavior. Mute कर लो. Patterns of behavior. उसमें है आपका first one is the innate behavior, the second one is the learned behavior. Okay, so I will try to cover these 2 points. So this whole unit will be over for unit 1. एक second. Hello. So in कहाँ पर थे हम? Ethology, definition, branches, methods and approaches. Definition of ethology. New line. Okay. Hello, आवाज आ रही है? Yes sir. हम लोग आज पढ़ेंगे Yes sir, आ रही है. Patterns of behavior, unit 1 का 1.3 topic, and then we will learn study this learned behavior, innate behavior and learned behavior. 2 types of behaviors are there. If we divide it, so we will quickly start now. थोड़ा subjective है, so I'll read it. अभी मैंने सुबह ही note बनाया है सारा. So innate versus learned, what are these types? These are 2 types of the behavior actually. Okay, based upon how they have acquired or learned in the lifetime of the individual, whether that individual have learned that skill by birth or that behavior is in the animal since birth, then it is called as innate behavior. And if that behavior is acquired or learned during its lifetime, then it is the learned behavior. जो innate behavior है, that passes from one generation to other generation, but the learned behavior do not pass unless and until the parent teaches the young ones. Then only the learned behavior passes from one generation to another next generation. But the innate behavior is inbuilt. जैसे मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है, वो पैदा होते के साथ वो तैरना शुरू कर देगी. Okay, so this is a type of innate behavior. So we will come quickly to this, the definition. When we are trying to understand how a behavior develops and how it arose evolutionary, one important question is whether the behavior is genetically programmed or acquired through experience. तो इनेट बिहेवियर का क्या कहानी है कि ये इवोल्यूशन के दौरान जितने भी चेंजेज हुए, जीन्स में चेंजेज हुए, द जीन्स आर नाउ प्रोग्राम्ड फॉर दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ द एक्टिविटी और द बिहेवियर, बिकॉज दैट बिहेवियर इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द लिविंग, for the life of that individual. That's why that behavior has got inculcated into the personality of that animal or that individual. So by birth, that person, that individual or that animal acquires that behavior by birth. At the time of birth, they possess that behavior. Okay, so the innate behaviors are genetically hardwired and are inherited by an organism from its parents. So we can say that these New are line. genetically hardwired, पूरी तरह से programmed है. Okay, learned behaviors are not inherited. ये inherited नहीं हो सकता learned behavior. जैसे आपने अभी जो पढ़ाई कर ली, ये behavior का जो चैप्टर अभी ethology पढ़ रहे हो, आपके बच्चे जरूरी नहीं होगा कि पैदा होते ही उनको भी ethology समझ में आ जाएगा.
This is the learned thing. This is the acquired skill that you have learned in your lifetime, and it is not going to pass to the next generation. So this is the learned behavior. Okay, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. And they develop during an organism's lifetime as a result of experience and environmental influence. क्यों डेवलप हुआ? एक्सपीरियंस हुआ. ठीक है, जैसे अगर आपको पता चल जाए इस चीज को छूने से, अगर गलती से आपने कोई लोहे का तवा छू दिया जो गर्म है, पता वो तो दिखेगा नहीं कि गर्म है कि ठंडा है, वो तो छूने से ही पता लगेगा. तो आप फिर उसको तुरंत नहीं छूओगे, पता लगे अरे वो गर्म है, उसको मत छूना. और यही चीज आपने बच्चों को बोल दिया गर्म है, उसको मत छूना. So you have transferred this information. Okay, so now your offspring will acquire that. They will learn that is hot, not to touch. But the question arises here is, the behaviors are not completely innate sometimes and not completely learned sometimes. They are of mixed type also. Some behaviors are mostly innate behaviors. For example, we will see later. And some behaviors are of mixed type, in which they are partially innate or partly learned behaviors. And the behavior which are mostly learned behaviors. Which means these behaviors are, third type of behavior, these behaviors are almost learned, but the basis is innate only. So there are, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है. वन सेकेंड मेरे यहाँ काम वाली आई हुई है, पोछा लगा रहे हैं, क्लास में डिस्टरबेंस हो रहा है. थोड़ा सा इनको काम कर लेने देते हैं, उसके बाद क्लास करते हैं. ठीक है, आप लोग वेट कर लीजिए. हेलो, मेरी आवाज? Okay, sir. Okay, sir. हाँ, वेट कर लीजिए थोड़ा देर. Yes. हेलो, हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कल रात को मैंने आप लोगों को बताया ही, स्थिति विकट हो गई है. एग्जामिनेशन, ओ ये रिकॉर्डिंग चल रहा है? नहीं, दिस इज कॉन्फिडेंशियल मैटर. बट द थिंग इज कि थोड़ा सा टाइम बहुत कम मिल पाएगा मुझे, तो मैंने क्या बोला है, ऑड आवर्स में भी हम क्लास लेंगे. ओके, आप लोग सब रेडी हो ऑड टाइम के लिए, क्लास के लिए? Yes, sir. और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा एक प्रपोजल मैंने पहले भी आप लोगों को दिया था, अगर इस पर वर्कआउट करो तो काफी आसान हो जाएगा आपका सेमेस्टर 3. क्योंकि एकदम कंप्लीटली मेरे भरोसे रहोगे तो हो सकता है कुछ चीज मिस हो जाएगा. मैं खुद मजबूर हूँ, चाह के भी नहीं कर पाऊंगा. तो जैसे कि नोट्स हो गया, अभी तो मैं नोट बना रहा हूँ, नोट बनाने में भी काफी टाइम जाता है मेरा. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. मैं ऐसा नहीं हूँ कि नेट से सर्च किया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया गूगल से, ऐसा नहीं. मैं पढ़ता हूँ पहले और उसमें देखता हूँ जो काम का चीज है उसमें छांटता हूँ, ट्रिम करता हूँ, देन मॉडिफाई इट, देन आई पेस्ट इट. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम.
आप लोग क्लास में करीब 18-19 बच्चे हैं और 4 पेपर है आपका थ्योरी का। हर पेपर में 5 यूनिट है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आर 20 यूनिट्स। अगर सारे बच्चे एक एक यूनिट उठा लें कि मैं इस यूनिट का नोट बनाऊंगा और वो नोट जो है मुझे जमा कर दो, तो मैं उसको क्विकली एक दिन में सारा नोट चेक करके उसको करेक्ट भी कर दूंगा, चेक कर जहां पर जो जो नहीं चाहिए वो सब काट छाट करके उसको, एक दिन लगेगा मेरे को टाइम, मैं उसको आप लोगों को रिटर्न कर दूं, मतलब रिलीज कर दूंगा। फिर आपके लिए वो पेपर का पूरा नोट हो गया, है कि नहीं? सब लोग कलेक्टिवली मेहनत करेगा। अब जो तेज स्टूडेंट है वो 2 यूनिट ले लेना, 2-3 स्टूडेंट, ओके। 2-3 यूनिट का तो नोट हम भी बना दिए हैं। Yes, sir. क्या होगा, या कंप्लीटली मेरे नोट के भरोसे रहोगे? सो बताओ। हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। कोई एक मॉनिटर बन जाइए क्लास में, और आप आपस में ही डिसाइड, मेरा टाइम मत लगाना इसमें, आपस में डिसाइड कर लो कौन आदमी कौन कौन यूनिट बनाएगा, ठीक है? और ये ध्यान में रखना कि एक यूनिट में मान लो कि जैसे 5 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, और आपका जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, मान लो मैक्सिमम जो है 10 मार्क्स का। तो आप ये समझना कि अंडर यूनिट, जैसे सिलेबस खोल लो तुमको समझ में आया, अंडर यूनिट 1 सपोज ये पेपर का एक अंडर यूनिट 1 है, उसके अंदर 5 बुलेट है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो समझ लो कि 1.1 इज ए क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, और उस 10 मार्क्स का क्वेश्चन में हम क्या क्या फिगर लिख सकते हैं, कैसे बढ़िया से आंसर कर सकते हैं, एकदम रिलीवेंट आंसर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, विथ अप्रोप्रिएट फिगर एंड लेवलिंग, प्रॉपर डिफिनीशन, प्रिंसिपल उसका, जैसे 10 नंबर का। इस तरह से आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अभी हम बता रहे हैं एक साथ कितने आम के आम गुठली के दाम मिलेंगे, मतलब एक तीर में बहुत सारे शिकार। एक तो प्रैक्टिस हो गया, आप क्वेश्चन आंसर भी करने का, आप उसको ढंग से सब बच्चा अलग अलग यूनिट प्रिपेयर कर लेगा और आपस में शेयर हो जाएगा, तो वो पूरा सिलेबस हो गया। दूसरा, मैं असाइनमेंट और आपका जो सेमिनार है उससे रिलीव कर दूंगा आपको, ठीक है? इंटरनल का जो 5 नंबर थैंक यू सर। उससे मैं relieve कर दूंगा, यही जो नोट बनाओगे आप इसी पर नंबर दे दूंगा उसका। सर मतलब सेमिनार और पीडीएफ नहीं होगा? देना चाहते हो तो दे दो, देना चाहते हो, नहीं होगा क्या मतलब, मेरे पास ही टाइम है, हम कितना काम करेंगे। और दूसरी बात है, कोरोना आ गया, अभी 11 तारीख के बाद फिर क्लास होगा कि नहीं होगा, दिस इज अनसर्टेन। सो आई एम मेकिंग दिस क्लियर, क्योंकि बिफोर ये क्लास सस्पेंड, ऑफिशियली क्लास सस्पेंड हो गया, ये ऑफिशियली सस्पेंशन के पहले हमने बोला था कि सेमिनार ले लेंगे, उसमें आप लोगों का प्रैक्टिस होगा, होता तो बहुत बढ़िया होता, आप लोगों का फायदा होता, प्रैक्टिस होता, बोलने सीखते, है ना? लेकिन अब हो ही नहीं पाए, क्लास में आ ही नहीं पाओगे तो क्या करोगे? ओ, हाँ सर। तो ये जो यूनिट वाइज आप नोट बना लोगे, इसी पर हम असाइनमेंट का मार्क्स दे देंगे, मार्क्स भी मिल गया, प्लस सब लोग अलग अलग यूनिट बना लेगा, असाइनमेंट हमको जमा कर दोगे, हम उसको करेक्ट करके चेक करके उसको रिलीज कर देंगे, और वो उस पेपर का आपका नोट हो गया। तो अब आप लोग आपस में डिसाइड कर लो, पेपर नंबर 10, 5 यूनिट है, 5 बच्चा कौन पेपर 10 संभालेगा वो डिसाइड कर दो। पेपर 11, 5 बच्चा कौन पेपर 11, हर पेपर में 5 यूनिट है, पेपर 11 कौन 5 बच्चा संभालेगा, पेपर 2 कौन 5 बच्चा, पेपर 13 कौन 5 बच्चा, ये सब 5-5 डिसाइड कर लो। थोड़ा कम पड़ेगा बच्चा तो एक एक बच्चा जो जो तेज है, टॉपर लोग, वो 2-2 यूनिट ले लो, और 2 यूनिट तो हम भी बनाए हुए, और हम भी नोट कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने कमिट किया हुआ था, नोट मैं करूंगा, लेकिन अब सोचो कि ये कंडीशन में अगर मैं नोट बनाने में टाइम जाया करूंगा तो टीचिंग से टाइम आपका कट जाएगा, क्योंकि लिमिटेड है मेरे पास टाइम। तो फिर आपका दूसरा पेपर जैसे इम्यूनोलॉजिकल होता है, सर समझाइएगा, तो कवर करना फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, समझ गए? तो मैं ये क्या करूंगा, मैं आपको पढ़ाता चलूंगा, और नोट बनाने में प्रॉब्लम जहां आएगा, आपको टॉपिक नहीं हो तो हमसे व्हाट्सएप पर पूछते भी रहना, तो मैं वहां से आपको गाइड भी कर दूंगा,
समझ में आई बात अब मेरी आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। बना। अब ये बताओ तुम लोग समझ गए, जितना जल्दी नोट बनाओगे और सबमिट कर दोगे और जितना जल्दी हम चेक कर देंगे उतना जल्दी फायदा होगा कि नहीं होगा? आप लोगों के पास सारा मटेरियल आ जाएगा पढ़ने का। यस सर। जैसे नेहा अगर सर तो आज से ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं अपना अपना टॉपिक लेके, नेक्स्ट टाइम जब भी Exactly. क्लास आएंगे आपको दिखा देंगे। एग्जैक्टली आज ही इस क्लास के बाद आप लोग आपस में एक्टिव ग्रुप वाले सारे जो जितने हैं, एक्टिव ग्रुप में कितना 10-12 कितना बच्चा लोग हैं, कितना स्टूडेंट? टेल मी समबडी द नंबर। सर अभी 13 है पार्टिसिपेंट अभी प्रेजेंट। 30। इंक्लूडिंग मी एंड सौरभ बिरला सर, तो 11 हो गए आपको। ठीक है, 11 स्टूडेंट्स हैं। ये 11 स्टूडेंट्स एंड द यूनिट्स आर 20। सब 2-2 यूनिट पकड़ लो। ओके, 2-2 यूनिट पकड़ लो। एक डिफरेंट पेपर, जैसे दीपा ले लो CC10 का यूनिट 1, CC11 का यूनिट 1 हो गया। या मेरा हम जो 2 यूनिट कवर किए हैं उसको छोड़ दो, उसको निकाल दो नोट्स, तो हम बना ही दिए। उसके अलावा जो बचता है उसमें 2-2 करके आपस में सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो। दिमाग है ही तुम लोग पास, लगा लो फुल दिमाग और वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लो और जितना जल्दी हो सके नोट को बना लो। और ये समझो कि नोट का हर बुलेट जो है वो 10 नंबर मार्क्स का है। एग्जाम में पूछा जाएगा तो उस 10 नंबर के मार्क्स को हम कैसे बनाएंगे, और ये भी दिमाग में इमेजिन करना कि वो 10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको 3 घंटा का टाइम दिया गया है जब नोट बना रहे हो तब। ओके, तब तुम जब वो फिर टॉप क्लास का आंसर हो जाएगा 10 मार्क्स का। तब फिर जब उस नोट को आप पढ़ोगे, एग्जाम में जब आंसर करोगे तो उसका 50% भी 75% भी आप लिख दिए, 50% भी लिख दिए तो टॉप क्लास आंसर। उतना एलेबोरेट नहीं करोगे। तो ये भी कोशिश करना कि फिगर को जितना ज्यादा से ज्यादा नोट में हम फिगर को इंक्लूड करें। तो नोट में अगर फिगर ज्यादा रहेगा ना, तो जब नोट को रिवाइज करोगे तो आपका क्या होगा कि पन्ना पलटते जाओगे और नोट रिवाइज होते जाएगा अगर फिगर खूब है। और जिसका नोट एकदम डिस्क्रिप्टिव होता है, लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, कम रिवीजन होता है। लाइन बाय लाइन भी जो लिखा हुआ है उसको तुम ये इमेजिन करो कि पिक्टोरियल वे में हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कर दे कि एक बार दिखा समझ में आ गया। ओके, गॉट माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। तो ये माइंड में रखना, Yes, एवरी बुलेट जो है वो 10 नंबर का है। 3 घंटा टाइम है आपके पास, नेट अवेलेबल है, गूगल अवेलेबल है। बनाओगे कैसे नोट? पहले तो उस जो भी टॉपिक है एक एक बुलेट को पकड़ लिए, उस बुलेट का हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर किए, गूगल में डाले और उसका हम प्रॉपर हम 2-3 जो उसका गूगल में सबसे अप्रोप्रिएट जो सर्च आता है फर्स्ट वाला। और एक टेक्निक और है, गूगल में जब स्पेसिफिक सर्च करना हो तो कीवर्ड्स के बीच में प्लस साइन मार देना। जैसे इनेट बिहेवियर, तो इनेट इम्यूनोलॉजी भी होता है, इनेट सिर्फ लिख दिए, इनेट प्लस बिहेवियर अगर सर्च करना है कोई भी आपको इसलिए, तो आप सर्च करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पार्टली इनेट पार्टली लर्नेड बिहेवियर्स का एग्जांपल सर्च करना फॉर एग्जांपल, तो आप गूगल के फील्ड में जो गूगल खोलोगे सर्च फील्ड में लिखोगे पार्टली प्लस इनेट प्लस पार्टली प्लस लर्नेड प्लस बिहेवियर, जितना भी कीवर्ड है सबका प्लस प्लस। तो क्या होगा कि वैसा डॉक्यूमेंट वो सर्च करेगा जिसमें ये चारों वर्ड हो, वैसा डॉक्यूमेंट नहीं वो आपको शो करेगा जिसमें चारों में से 3 हो या 2 हो या 1 हो, वो स्पेसिफिक हो जाएगा। तो इस तरह करके आप स्पेसिफिक सर्च करना और उसमें से पहले पढ़ लेना, 2-3 आर्टिकल आप पढ़ लेना उसमें, और उसके बाद समझ लेना। उसके बाद फिर थर्ड टाइम पढ़ना, उसके बाद शॉर्ट पॉइंट बनाना, और उसके बाद फोर्थ अटेम्प्ट में उस सारे शॉर्ट पॉइंट को आप कलेक्शन करके एक समराइज या थोड़ा डिस्क्रिप्टिव जैसा आपका करें उस टाइप से नोट बनाना। बाकी इतना साल तक नोट बनाया हो, दिमाग लगाओ। एनीवे, ठीक है, समझ गए? यस सर। बात समझे? तो इस तरह अगर ये कर लो, आप आज ही डिस्ट्रीब्यूट कर लो, टारगेट रखो आज ही टॉपिक हम यूनिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और हम नोट बनाना आज से ही शुरू कर देते हैं। 2 यूनिट है, 5 दिन मैक्सिमम रखो। 2 यूनिट में अगर
4 बुलेट्स है तो 5 चौका 20, 4 बुलेट है तो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 घंटा, 3 घंटा का मान लो। फिर भी चाहो तो 1-2 दिन में भी बना सकते हो, 1 दिन में भी बना सकते हो, फिर भी 5 दिन ले लो और 5 दिन में दोनों का आप खत्म कर दो नोट, और उसके बाद हमको सबमिट कर दो। हम चेक करके छठा दिन आपको रिलीज कर देंगे व्हाट्सएप पर। और एक बात और, नोट बनाना, जब फाइनल नोट बनाना तो टाइप करके बनाना कंप्यूटर पर, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर मैं उसको एडिट जो करना होगा वर्ड में बनाना, एडिट जो करना होगा हम कंप्यूटर पर एडिट कर देंगे और उसको रिलीज कर देंगे, तो वो पीडीएफ बना के रिलीज हो जाएगा। हैंड रिटन मत, जो फाइनल हमको बना के दोगे, समझ रहे हो? Yes, sir. अब वर्ड फाइल में कंप्यूटर का एक्सेस होगा ही नहीं होगा तो अगल बगल दोस्त इधर उधर नेट कैफे जुगाड़ करो। क्योंकि डिपार्टमेंट खुला नहीं, कॉलेज आ नहीं सकते हो, नहीं तो हम डिपार्टमेंट में लैपटॉप लगा देते यहाँ का, वहां भी जिसके पास नहीं आके कर सकता। लेकिन करो जैसे कर सकते हो, नेट पर अगल बगल भाई भौजाई किसी का मांग के, आस पड़ोस जिसके पास लैपटॉप हो उससे दोस्ती करो, करके आप लोग कीजिए। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अभी ये जूम सेशन एंड होने में 5 मिनट ही रह गया है, तो कुछ पूछना है डाउट तो अभी तुम लोग पूछ लो 2-4 मिनट में। उसके बाद ये सेशन एंड होने के बाद हम फिर इमीडिएटली आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन, और उसके बाद ये यूनिट शुरू करेंगे। कुछ पूछना है अभी तक में जो बोले हैं? किसी को कुछ डाउट है? सर तब तो चारों पेपर का पीपीटी नहीं बनाना पड़ेगा ना, तो अगर 2 यूनिट लेते हैं तो वही दोनों को कंप्लीट करना होगा। एग्जैक्ट, इसीलिए तो बोले एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। उस पर आपका मार्क्स भी दे देंगे और उससे आपका नोट भी बन गया, आपस में सब लोग शेयर भी कर लिए, ठीक है? और Sir, आप लोग excuse me, तो sir. जिस भी बच्चा का जिस पेपर में कम नंबर आया तो वो 5 व्यक्ति जो कि नोट बनाए हैं उनको जाके फरिया लेना, और जिसका सर ज्यादा आया वो 5 को ट्रीट दे देना। हाँ बोलो, क्या बोलो? हाँ, और ये बोल रहे थे सर 5 दिन में सर बोले दोनों यूनिट को खत्म करने, अरे बहुत कम समय है। सर, जैसे कि हम लोग पीपीटी में जो टॉपिक लिए हैं तो उसी यूनिट को कवर कर लेते हैं। हाँ कर लो। नहीं, पीपीटी तो आप नहीं अपने वैसे तो कोई पीपीटी तो हाँ, आपने सिलेबस सर कवर उस करने के PPT उद्देश्य बीच से में लिया ना, वो तो आपने सहूलियत से लिया कि 5 ही मिनट में हमको बोलना है, छोटा से छोटा टॉपिक लें और आसान लें, उस उद्देश्य हाँ वो तो सर उस यूनिट का पूरा सर। बस इतने यहाँ पर यूनिट में हमारा, तो 2-3 मिनट ले लिया है ना, उसमें दिक्कत हो जाएगा फिर। हाँ उसको आप भूल जाओ, वो अब गौन चैप्टर, वो कोरोना के अभी क्लास सस्पेंड होने के पहले था, अब आएंगे नहीं तो कहाँ से लेंगे, वो पहले था। अब जो क्लास ठीक है सर। आप ये जो मोटिव है, एक सब यूनिट लेंगे, इसका मोटिव है कि पूरे सिलेबस को स्कैन कर देना, समझे? 4 पेपर, प्रैक्टिकल का पेपर को छोड़ के ये चारों पेपर को स्कैन कर देना और हर एक यूनिट को कवर कर देना थॉरोली, ठीक है? तो हाँ सब यस। लोग अलग अलग यूनिट उठा लोगे और बढ़िया से प्रिपेयर कर लोगे। मैक्सिमम जो तेज बच्चा है, जो ज्यादा नंबर लाता है, वो 2 यूनिट ले लो। हम सबको तेज मानते हैं, कोई बुरा मत मानना कि हमको सर तेज नहीं काहे नहीं बोल रहे हैं, सबको तेज मानते हैं, लेकिन यहाँ पर तेज इन द सेंस उनका एक्टिविटी, बिहेवियर अभी पढ़ा रहे हैं, अभी आगे चल के बताएंगे कैसा कैसा बिहेवियर होता है। एक्टिविटी सब तेज है, लेकिन कितना लोग होता है लेथार्जी होता है, कितना लोग होता है थेथर होता है, ठीक है ना? थेथर वाला, थेथर बिहेवियर भी अभी आपको, तो समझे? आप लोग अभी ये सब अपने हिसाब से बांट लीजिए और सुबह से शीघ्रम तुरंत शुरू हो जाइए। अब 5 दिन काफी है। दीपा तुमको क्या लग रहा है? हाँ फैमिली वगैरह है आप लोगों का, तो हो सकता है थोड़ा कम समय मिले, फिर भी कोशिश करो, ठीक है ना? जोर सर लगा के। 2 यूनिट है ना सर, 2 यूनिट में 1 यूनिट में तो 5 नोट्स आराम से बनेगा, 2 यूनिट नो, इन 10 नो, नोट्स। मैं बता देता हूँ। दीपा, कौन कौन मैरिड है? दीपा एंड दिलशाद, बोथ आर मैरिड ना? और कोई मैरिड है क्या? विधि, विधि इज ऑल्सो मैरिड। और कोई मैरिड है इसमें? नहीं नहीं सर। तीनों तीनों के पास बच्चे हैं ना? दीपा के पास तो है, दिलशाद
दिलशाद के पास भी है, विधि के पास भी है, हाँ ओके। तो ये तीनों जो हैं मैरिड एंड विथ फैमिली जो हैं, इन तीनों ये तीनों वो एक एक यूनिट बनाइए। सर हम 2 यूनिट बना लेंगे, हमको वैसा टेंशन नहीं है। अब हो गया ना। लेकिन समय चाहिए सर, लेकिन टाइम चाहिए सर, 5 दिन बहुत बस कम है सर। सबसे बड़ा चीज यही है, टाइम ही है इम्पोर्टेंट। तो टाइम नहीं है ना, तो 5 दिन में अगर 2 यूनिट कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो ट्रांसफर कर दो किसी दूसरे को, जो 2 यूनिट 5 दिन में कर देगा, उसको कर लेने दो, ठीक है। बाकी आपको हम लिबर्टी दे दिया, बाकी जो करना है कर लो अपने मन से, ठीक है। बाकी मैरिड लोग हैं वो 1 यूनिट भी बना लो, बहुत है। और टाइप करके दोगे, उसी में फिगर लगाओगे, जहां मोबाइल से फोटो खींचोगे, कैमरा में, ये सब सीखोगे कैसे, कब सीखोगे, वर्ड में फोटो इंसर्ट करोगे, उसका डायमेंशन, फोटो अलाइन, ये वो करोगे मोबाइल से खींच के, कंप्यूटर, ये सब सीखो इसी चक्कर में है। गूगल से फोटो डाउनलोड करो, पर्टिकुलर इमेज सर्च करो, जो भी डायग्राम है, फिर उसको लगाओ। तुम देखे होगे मेरे नोट्स में अच्छा अच्छा डायग्राम आपको मिलेगा, सर्च कर करके जो पूरा। और डायग्राम एक बार देख लेने के बाद, दैट डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। अब ये यस सर। ये एंड होने वाला है अभी हम। अच्छा, और कुछ डाउट है किसी को? नो सर। दीपा, क्लियर हो गया मेरी बात आपको? यस सर। युसगिंधा, यस सर। क्लियर?